प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, اساتذہ کرام اور پیارے بچوں کو آج کی خوبصورت تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم آج یہاں ان بچوں کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور بہترین کارکردگی سے نہ صرف اپنے والدین بلکہ اپنے اساتذہ کا بھی دل جیت لیا ہے۔ تقریب کا آغاز ہم اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں آمنہ بن رضوان کلاس 2 سے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اب میں دعوت دیتی ہوں حاشر فیضان کلاس 2 سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت نام یعنی اسماء الحسنی پیش کریں۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الممد المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المطاع البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ پاک نام ہمیں اس کی عظمت اور اس کی مہربانی یاد دلاتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتی ہوں مناہل دانش کلاس 2 سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حق نبی حق نبی حق نبی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے،
وہ ہاشمی، وہ ہاشمی نبی مدنی اور نبی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، محمد وہی ختم رسول ہے، محدوب مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ہاشم راہیل کلاس 3 سے کہ وہ تعلیم کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، معزز والدین اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے تعلیم کی اہمیت۔ میرے پیارے ساتھ کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، اور جو تعلیم سے دور رہتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تعلیم صرف ایک آپشن نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم ہمیں اچھا انسان بناتی ہے، ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان دیتی ہے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتی ہے۔ محترم اساتذہ کرام، معزز اور والدین، آپ سب کی محنت اور محبت کی وجہ سے ہم بچے آج علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی رہنمائی میں ایک روشن ہم کل بتائیں گے۔ آخر میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، آؤ دل لگا کر پڑھیں، محنت کریں اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں۔ اللہ ہمیں علم کی روشنی عطا فرمائے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اب میں وبرکاتہ۔ عائشہ اور ان کے گروپ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ قومی ترانہ اور اسکول ترانہ پیش کریں۔ عائشہ اسکول پر آگے بڑھے، علم کی روشنی سب میں بٹے، پڑھے لکھے آگے بڑھے، علم کی روشنی سب میں بٹے، کتابیں ساتھی قلم ہے کیا، محنت سے کریں گے ہر دن سوال، سچائی کا جھنڈا ہم نے اٹھایا، غلط رنگیوں کو ہم نے مٹایا، سچائی کا جھنڈا ہم نے اٹھایا، غلط رنگیوں کو ہم نے مٹایا، سوچا نہیں
अफजाल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और पोजीशन होल्डर्स बच्चों को इनामात से नवाजें। हमें खुशी है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं ताकि हमारे कामयाब तालबा व तालबात को सराहा जा सके। आए हम सब एहतराम और तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। It's great honor for me to welcome you on behalf of my students and my staff for the result ceremony 2024 and 25. I congratulate all my students, my staff and parents for the session, for the result which we are going to be announced. प्यारे बच्चों, आज आपकी कामयाबी का एक कदम आगे बढ़ा है। आप लोगों ने पूरे साल जो मेहनत की उसका नतीजा आज आपको इनामात के लिए सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम तालीम के साथ तरबियत की भी बात करते हैं। आज थोड़ी सी बात मैं वालिदैन से करना चाहती हूँ। मुझसे अक्सर वालिदैन कहते हैं, मैडम बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। कभी आपने इस बात पे गौर किया, बच्चा क्यों नहीं सुनता? बच्चा इस आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करता है। हम और आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। आज मैं आपको सिर्फ 3 नुक्ते बताऊंगी। इन नुक्तों पे अगर आप अमल करेंगे, मैं गारंटी से कहती हूँ आपके बच्चों में तब्दीली आएगी। सबसे पहले ये कि बच्चा माँ की तरबियत होती है, वो अपनी माँ को देखता है। हम जब बच्चे के साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं वो उसी का रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सबसे पहले सुबह उठती है, हमारे अल्फाज क्या होते हैं, उठ जा। उसके बाद एक गाली बकी, इतनी देर हो गई है, तुम्हें पता नहीं देर हो रही है। बच्चा सो के उठा है, उसके कानों में माँ के चीखने की आवाज आ रही है और ये बेहतरीन वक्त है आप बच्चे की तरबियत करो। आपका एक जुमला उसकी पूरे दिन के लिए बेहतरीन होगा। आप अगर उसको ये जाहिर करो कि आप उसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, याद रखिएगा बच्चा भी वही कहेगा। आप उसे कहो कि बेटा आपका स्कूल जाने का टाइम हो गया है, आप जल्दी से उठो, आप तुम्हें बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे आके बताना है कि आपने स्कूल में क्या किया। बच्चे के जहन में वही बात बैठेगी, वो यही कोशिश करेगा कि मैं जल्दी जल्दी अपनी अम्मी को जाके बताऊं आज मैंने इतना अच्छा काम किया, मिस ने स्टार दिया, मिस ने मुझे शाबाशी दी, बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया। अगर यही जुमला आप लोग उसको मार के डांट के घसीट के भेजेंगे तो वो सारा दिन उसका बिहेवियर वो ही रहेगा। फिर दोपहर होती है, इनके वालिद नहीं होते, आपके लिए बेहतरीन मौका है। जब बच्चा आता है उसको तरबियत दो, चीजें जगह पे रखो, खाने में साथ बैठो और फिर आप उससे बताओ मैंने सारा दिन तुम्हारा इंतजार किया, तुम बताओ तुमने आज कितने अच्छे काम किए। जब बच्चा अपनी इम्पोर्टेंस देखेगा तो याद रखिए वो फौरन बताएगा, मैं आज अम्मी मैंने इस बच्चे के साथ मारा, आज उसके साथ ये किया। आप उसको प्यार से समझाओ, बेटा ये तो आपने किया है लेकिन कल ये हरकत नहीं करना। आप यकीन करो बच्चा उस वक्त गौर से सुनेगा। आप अपने प्रॉब्लम उसको बताओ, बेटा आज आप नहीं थे, मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हुई, अगर आप होते तो आप मेरी मदद करते, मेरा काम आसान हो जाता। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया। अब आती है रात। रात में इनके फादर होते हैं, एक रूल बना लो, जब अब्बू आएंगे हम सब मिलके खाना खाएंगे। जब सब बैठ गए आप इनके वालिद के सामने, अपने घर वालों के सामने बच्चे को अप्रिशिएट करो कि आज बच्चा गया था, उसने आज इतना अच्छा काम किया, आज उसने मेरे साथ मदद की। यकीन करें बच्चे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं और उनके अंदर तब्दीली आती है। इसके बरक्स हम क्या करते हैं, टीवी खोले हुए होते हैं, मोबाइल हाथ में होता है,
बाप से लेके बच्चे के सामने पूरे घर की शिकायत कर रहे होते हैं, आज उसने ये कहा, आज उसने ये कहा। बच्चा सुन रहा है, आप पे जाहिर नहीं कर रहा, मगर उसके दिमाग में वही बातें बैठ रही हैं। अगर आप उसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी बताओगे कि आज बच्चे ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो याद रखिए आपके हस्बैंड के, आपके ससुराल के जो भी मसले हैं बच्चों के सामने डिस्कस मत करो। बच्चे के सामने कभी भी आपस में बहस ना करो। कोई भी बात है आप लोग अलहदगी में डिस्कस करो। जब बच्चा ये देखता है ना कि आप और आपके हस्बैंड या आपके जो ससुराल वाले हैं वो चीख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो वो बच्चा वही बिहेवियर अडॉप्ट करता है आहिस्ता आहिस्ता। जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर वही सख्तगी, वही जिद, वही अना आ जाती है जो वो बचपन से देख रहा है। एक छोटा सा बीज है, हम उसको जमीन में बोते हैं, उसको प्यार से मोहब्बत से पानी डालते हैं, उसकी पैदा उगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हम सब्र करते हैं, हम मेहनत करते हैं। उसके बाद वो बीज पौधा बनता है, उस पौधे के बाद दरख्त बनता है, दरख्त बनने के बाद वो हजारों लोगों को साया देता है, फल देता है और उनके लिए एक तरह से बाई से मुसर्रत का मौका होता है कि जब कोई भी मुसाफिर उस दरख्त की छांव में बैठता है तो दुआ दे के निकलता है। एक कहानी बच्चों मैं भी आपको सुनाऊंगी। एक दफा हजरत मूसा अल्लाह ताला से पूछने लगे कि या अल्लाह आपने मुझे पैगंबरी के लिए क्यों चुना? तो आपको पता है अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? आपने कहा ए मूसा, एक दफा तुम बकरों का भेड़ों का रेवड़ लेके जा रहे थे, उसमें से एक बकरी जो थी वो रेवड़ से अलहदा हो गई और भागने लगी। वो पहाड़ों की तरफ भागी, आप भी उसके पीछे भागे। भागते भागते आप भी थक गए और वो बकरी भी थक गई। एक जगह आके बकरी रुक गई, आपने उसे गोद में उठाया और उसकी टांगे दबाने लगे और कहने लगे कि ए बकरी, तुम खुद भी थक गई और मुझे भी थकाया, अगर तुम आज नहीं भागती तो तुम इतनी नहीं थकती। आप उसकी टांगे दबाते रहे और उससे हम कलाम होते रहे। अल्लाह ताला ने कहा मुझे तुम्हारी वो अदा पसंद आ गई कि तुमने एक बकरी के साथ हमदर्दी की, उसके साथ नेकी की। जब एक बकरी का इनाम अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बना के दिया, तो जब आप छोटे छोटे काम करेंगे, नेकी के काम करेंगे, अपने वालिदैन की बात सुनेंगे, तो आप सोचिए अल्लाह ताला आपको कितना नवाजेगा। ये साल एक कदम आपकी कामयाबी का है और इंशाअल्लाह हजारों साल आपकी जिंदगी में आएंगे अगर आपने नेक काम किए, अपने वालिदैन का कहना माना, तो कामयाबी आपका रास्ता चूमेगी और आगे जाएगी। और अगर आपने बुराई का रास्ता लिया तो आपके लिए तबाही है, आपके आगे की मंजिल में आपके लिए परेशानियां हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो? आपको क्या करना है? अपने वालिदैन की बात सुननी है, उनका कहना मानना है। आपकी अम्मी आपके लिए खाना पकाती है, आपका जुमला क्या होता है? मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं। लेकिन कभी सोचा आपकी अम्मी ने कितनी मेहनत से बनाया है, आपके वालिद कितनी मेहनत से लेके आते हैं। इसके बदले अगर आप कहोगे अम्मी आज बहुत मजे का बना है, तो आपकी वालिदा खुश होकर आपको दुआएं देंगी। यही दुआएं आपकी किस्मत का दरवाजा खोलेंगी। जज़ाकल्लाह खैर। First award goes to Iman Kamran, Aiza Faisal and Sudes Abdul Hamid.
Abdul Ahad Nadeem Maha Salman. Let's move forward to class KG1. First award goes to Abdul Hadi Junaid and Sadia Yaz. Second position is bestowed upon Bashra Ahmed. Third rank is given to Sakina Abdul Wahid. Moving forward to class KG2, first award goes to Manahil Danish. Zarfat. To Abdullah Hassan. Moving further to class 1, first award goes to Shayan Tariq. Second position is bestowed upon Aisha Shahid. Giving to Aliza Rizwan. Moving toward class 2, first award goes to Anaya Farhan. Second position is bestowed upon Khurram Ahmed. Third rank is given to Amna Rizwan and Aisha Farooq. Class 3, first award goes to Halima Shahid, Umaima Kamran and Zara Imran. Bestowed upon Aisha Kashif. Rank is given to Hashim Rai.
नाज़रीन, अजीज तालबार, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने बच्चों की कामयाबी में असातिज़ा के किरदार को ना भूलें। ये असातिज़ा ही हैं जिन्होंने इन बच्चों को ना सिर्फ इल्म दिया बल्कि ज़िंदगी के अहम असबाब भी सिखाए। इनका हर दिन, हर लम्हा बच्चों की तरबियत में गुजरता है और इनकी मेहनत का नतीजा आज हमें इन बच्चों की कामयाबी की सूरत में नजर आ रहा है। अब मैं दावत देती हूँ हमारे मोहतरम प्रिंसिपल को कि वो हमारे मोहतरम असातिज़ा की मेहनत और लगन को सराहते हुए इन्हें सर्टिफिकेट से नवाजे। ये असातिज़ा ही हमारे तालीमी सफ़र की हकीकी हीरो हैं, जिनके बेलौस खिदमत और मोहब्बत की वजह से हमारे बच्चे आज कामयाब हैं। Miss Mehreen Shakil is awarded with the Best Classroom Management. Miss Ilsa Aslam is awarded with 100% punctuality and attendance. Miss Bushra Umar is awarded with excellence in off-time duty. Miss Sumama Jamil is awarded with 100% punctuality on time. गहराइयों से तमाम वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे तालबा का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी मेहनत और ताउन की बदौलत इस तकरीब में कामयाब बनाया गया। प्यारे बच्चों, याद रखो, ज़िंदगी में कामयाबी मेहनत, अज़म और सच्चाई से हासिल होती है। हमेशा अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और हमेशा दयानतदारी, ईमानदारी और नज़्म-ओ-ज़ब्त
नज़्म व ज़ब्त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज और निगहबान हो और आपके रास्ते हमेशा अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ फरमा हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और बच्चों की तस्वीरें बनाने के दौरान रिफ्रेशमेंट का लुत्फ़ उठाएं।